Welcome to the yet another session on computer networks. Today we'll discuss the type of redundancy check, and we basically have four types of redundancy algorithms or methods. तो उनमें से जो पहला है that is VRC, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, वो हम आज डिस्कस करेंगे. LRC, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, वो कल डिस्कस करेंगे. देन जो बाकी के दो हैं, CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, एंड चेकसम, दैट विल बी डिस्कसिंग इन फर्दर लेक्चर्स. तो redundancy क्या होती है? We have already discussed in our previous lectures. Redundancy simply means adding the duplicate bits into the data word, in the code word. So data word basically is the actual data, and based upon the data word you will generate the redundant bits, duplicate bits, and you will add those redundant bits with the data word, and that will become the कोड वर्ड. और कोड वर्ड को आप ट्रांसमिट कर दोगे फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन. तो कोड वर्ड बेसिकली कंटेन्स द एक्चुअल डेटा प्लस द रिडंडेंट बिट्स. तो रिडंडेंसी के बाद अब हमने देखना है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं रिडंडेंसी के, और उन सभी का कॉन्सेप्ट क्या है. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. Now talking about the various error detection codes or methods, we have basically four types of error detection codes or methods. The first is vertical redundancy check, that is also known as VRC. The longitudinal redundancy check, that is known as LRC. Cyclic redundancy check, that is known as CRC, and the fourth is checksum. So today we will emphasize on the first error detection method, that is known as VRC. The VRC is also known as the parity check. इसमें हम parity bit को use करते हैं for error detection. Let's start with the VRC or parity check. This method is known as VRC, that is vertical redundancy check, and also known as parity check. In this method, a redundant bit called parity bit is added to the each data unit. So what we used to do in this method is we used to add one redundant bit called parity to the data unit. Suppose कीजिए आपके पास data है 1010. What we will do, we will add a duplicate bit, a redundant bit to this data unit, and then redundant bit plus the data will be transmitted to the receiver. So this method include even parity or odd parity. अब ये even parity क्या होती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं. Even parity means the total number of ones in data is even, and odd parity means the number of ones in data is odd. If the number of ones in the data is 2, 4, 6, 8 like this, then that is known as even parity. And the number of ones, if the number of ones in the data is 1, 3, 5, 7, then that is known as odd parity. तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं. तो सबसे पहले suppose this is the data that the sender wants to send to the receiver. So अब हमारे पास actual data क्या है? 1 1 1 0 0 1 1. तो first of all we will count the number of ones. तो अब ये है actual data. तो obviously अब मुझे इसमें add क्या करना है? A redundant bit, एक duplicate bit मुझे add करनी है इस data में. तो एक बिट की दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1. तो सबसे पहले मेरे पास है डेटा. उस डेटा में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक रिडंडेंट बिट ऐड करूंगा. अब रिडंडेंट बिट ऐड करने का मीनिंग ये हुआ, तो बिट कैन बी, द वैल्यू ऑफ द बिट कैन बी 0 और इट कैन बी 1. सो द पॉइंट इज व्हाट शुड आई बी एडेड. अब कौन क्या बिट की वैल्यू क्या ऐड करूं. अब मुझे ये तो पता है दिस इज द डेटा एंड आई हैव टू ऐड द रिडंडेंट बिट टू दिस डेटा. तो एक बिट मुझे ऐड करनी है इस डेटा में, बट एक बिट की वैल्यू इट कैन बी 0 और इट कैन बी 1. तो क्या इसमें 0 ऐड करूं या 1 ऐड करूं. अब करूं क्या ऐड इसमें,
तो उसके लिए आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सा फंडा है. You will count the number of ones. If the number of ones will be odd, you will add the one. And if the number of ones will be even, you will add the zero. So what you will do here, अब ये था एक्चुअल डेटा. व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी काउंटिंग द नंबर ऑफ वंस, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इज ऑड. तो अगर ऑड है तो आप जीरो ऐड वन ऐड करोगे, और अगर नंबर ऑफ वंस इवन है तो आप जीरो ऐड करोगे. दिस एडेड बिट इज कॉल्ड पैरिटी बिट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल काउंट द नंबर ऑफ वंस in the data. So number of ones in the data is 1, 2, 3, 4, 5. So number of ones are odd. So what I will do, I will add a parity 1 to this data. After adding the parity, the data will be sent to the receiver. After receiving the data, the user will count the number of ones. If the number of ones will be even, the data will be accepted. But if the number of ones will be odd, it means one bit has been changed and data will be rejected. Now, this can be made clear with the very simple example. तो एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं. तो मान लीजिए दिस इज द डेटा. I will pass this data to the generator. क्योंकि रिडंडेंसी में यही हो रहा था ना, आप डेटा को पास कर रहे थे जनरेटर को. तो जनरेटर क्या करेगा, वो डेटा में नंबर ऑफ वंस को कैलकुलेट किया उसने, और नंबर ऑफ वन कैलकुलेट करने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो कौन सी पैरिटी बिट ऐड करेगा. सो क्या ऐड करेगा वो, क्योंकि नंबर ऑफ वंस इज ऑड, इट विल ऐड द पैरिटी बिट 1 टू द डेटा. तो एक्चुअल में बाद में डेटा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1 1 0 0 1 1 1 1. Now this data will be transmitted to the receiver. तो रिसीवर को ये डेटा मिलेगा. सपोज कीजिए उसको ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये डेटा में कोई एरर नहीं आई, तो यूजर को यही डेटा रिसीव हुआ, 1 1 1 1 0 0 1 1. So after receiving the data, the receiver will pass the data to the checker. So checker will calculate the parity. If the parity will be even, the data will be accepted. But if the checker will found the parity odd, the data will be rejected. So this is the simple fundamental of the VRC. जैसे हमने redundancy में कल डिस्कस किया ही था. In redundancy, what we use to pass the data to the generator. Generator generates the redundant bits, and then that redundant bits are added into the data and transmitted to the user. अब लेकिन VRC में स्पेसिफिकली हो क्या रहा है, जनरेटर कैसे चेक कर रहा है कि वो कौन सी बिट ऐड करेगा. तो जैसे हमने जनरेटर को डेटा पास किया, एक्चुअल डेटा वर्ड पास किया, तो जनरेटर विल काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द डेटा. If the number of the ones will be even, the zero will be added. But if the number of ones will be odd, then the one will be added. So it means चाहे कोई भी केस हो, आपके डेटा में हर बार नंबर ऑफ वंस क्या होंगे, इवन ही होंगे. क्योंकि अगर नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे तो उसमें हम एक ऐड करके उसको इवन कर देंगे. अगर नंबर ऑफ वंस इवन होंगे तो उसमें हम जीरो ऐड करके उसको इवन ही रहने देंगे. तो इट मींस on receiving the data, receiver every time check the even parity only. If the parity will be even, data will be accepted. If the parity will be odd, the data will be rejected. So this is the fundamental of the VRC. Now
दिस इज द एंटायर प्रोसेस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ VRC कैन डिटेक्ट ओनली सिंगल बिट एरर्स. हाँ, VRC सिंगल बिट एरर को के लिए ही मोस्ट एफिशिएंट है. इट कैन डिटेक्ट द बर्स्ट एरर आल्सो, बट if the number of bits that are changed will be odd. अगर अगर एक ही बिट हुई उसको तो वो ये एफिशिएंटली हैंडल कर लेगा. लेकिन सपोज कीजिए जो नंबर ऑफ बिट्स हैं, बर्स्ट एरर ये तभी डिटेक्ट कर लेगा अगर डेटा में जो बिट्स चेंज हुई हैं उनका नंबर ऑड हो. अगर उनमें चेंज जो हुई हैं उनका नंबर इवन हुआ तो इट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द एरर. फॉर एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इस चीज का मतलब क्या है एक्चुअली. कि क्या मतलब है कि अगर एक ही बिट चेंज होगी तो इसको ये पकड़ेगा, अगर एक से ज्यादा होंगी तो ऑड नंबर में होनी चाहिए, इवन नंबर में नहीं होनी चाहिए. तो सिंपल सा फंडामेंटल है. तो देखते हैं इसको कि ये कैसे काम करता है. अब सपोज कीजिए ये था आपका डेटा. ठीक है जी. तो जनरेटर ने इसमें नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट किए. नंबर ऑफ वंस से ऑड उसने एक ऐड कर दिया तो डेटा आपका बन गया दिस वन. अब आपने इस डेटा को ट्रांसमिट कर दिया. सपोज कीजिए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये बिट चेंज हो गई और रिसीवर को क्या रिसीव हुआ, 1 0 0 1 1. ठीक हो गया जी. रिसीवर इसको चेक करेगा. नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड. तो अगर नंबर ऑफ वंस है ऑड तो वो उस डेटा को रिजेक्ट कर देगा. तो इसने सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर लिया. अब मान के चलिए कि एक बिट की जगह पे दो बिट्स चेंज हो गई, तो ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया. अब यूजर को क्या डेटा मिला, 0 0 0 1 1. उसने उसकी कैलकुलेट की पैरिटी, वो क्या निकली, इवन. उसने डेटा को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया. बट आप क्या बताइए, ये डेटा सही है, ये डेटा वही है जो सेंडर ने ट्रांसमिट किया था? नहीं, ये डेटा सेम नहीं है. फिर भी ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि VRC इज एफिशिएंट इन हैंडलिंग द सिंगल बिट एरर ओनली. हाँ, ये बस्ट एरर कब आइडेंटिफाई कर सकता है, सपोज कीजिए कि ये ट्रांसमिशन हुई और ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ये बिट भी जीरो हो गई. तो अब यूजर को क्या रिसीव हुआ, रिसीवर को क्या रिसीव हुआ, 0 1 0 0 0. उसने देखा भाई ये तो पैरिटी ऑड हो गई, तो पैरिटी ऑड मींस डेटा विल बी रिजेक्टेड. तो अब इसने बस्ट एरर डिटेक्ट कर ली क्योंकि नंबर ऑफ बिट्स जो चेंज हुई वो कितनी थी, 3. तो इट मींस ये बस्ट एरर कब आइडेंटिफाई कर सकता है, जब नंबर ऑफ बिट्स चेंज होने वाली ऑड नंबर में होंगी, जैसे 3 7 9. लेकिन अगर वो इवन नंबर में हुई, 2 4 6 लाइक दिस, देन इट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द बस्ट एरर. तो इट मींस इसकी तो अब ये कंडीशन नहीं हो सकती भाई बस्ट एरर ऐसे हो तो ये कर लेगा, ऐसे हो तो नहीं. नहीं नहीं नहीं, नहीं. तो बेसिकली VRC इज एफिशिएंट विद द सिंगल बिट एरर ओनली. यू कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ बस्ट एरर विद द VRC, क्योंकि अगर उसमें ऑड बिट्स चेंज हुई तो बस्ट एरर को डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन नंबर ऑफ इवन बिट्स चेंज हुई तो बस्ट एरर को डिटेक्ट ही नहीं करेगा, ये तो बोल देगा कि डेटा ठीक है. सो इट मींस द VRC इज एफिशिएंट विद द सिंगल बिट एरर ओनली. तो अब सिंगल बिट एरर से को हमने जैसे बताया कि नंबर ऑफ बिट्स अगर चेंज हुई ऑड तो डिटेक्ट हो जाएगा, इवन हुई तो नहीं होगा. लेकिन उसके लिए सोल्यूशन हमने फिर निकाला टू डायमेंशनल पैरिटी चेक. टू डायमेंशनल पैरिटी चेक में हम क्या करते हैं, बेसिकली टू डायमेंशनल पैरिटी चेक में हम रोज और कॉलम्स बना लेते हैं डेटा की, लाइक दिस. और रोज और कॉलम्स के लिए हम अलग अलग पैरिटी कैलकुलेट करते हैं. जैसे दिस इज रो नंबर 1, कॉलम नंबर 1, रो 1 कॉलम 1, कॉलम 2 रो 2, कॉलम 3 तो कॉलम 4, कॉलम 5 एंड कॉलम 6. तो रोज के लिए अलग पैरिटी यूज करेंगे, कॉलम के लिए अलग. पहले यहां पे देख लो पैरिटी 1 2 3 4. रो 1 के लिए पैरिटी क्या होगी, 0. और रो 2 के लिए 1. इसी तरह कॉलम्स के लिए 1 1 0 0 0 0 0 एंड 1.
तो अब अगर एक बिट चेंज हो गई, सपोज करो ये बिट चेंज हुई, तो ये दो जगह इफेक्ट करेगी, रो वाइज भी पैरिटी को इफेक्ट करेगी और कॉलम वाइज भी इफेक्ट करेगी। तो इससे आप ज्यादा एफिशिएंटली अपनी एरर्स को कैच कर सकते हो। तो ये हो गया टू डायमेंशनल पैरिटी चेक। तो मैं एक बार आपके लिए एक बार मैं लेट मी स्टार्ट द पीपीटी अगेन बिकॉज यू वर नॉट एबल टू सी द स्लाइड्स। तो उसके लिए मैं एक बार वापस जल्दी से स्टार्ट करता हूं अपनी प्रेजेंटेशन को, और ताकि आपको जो आपकी डायग्राम्स हैं वो क्लियर हो जाएं एक बार। तो उसके लिए लेट मी अलाउ द 1 minute, just 1 minute. Yeah, very fine. तो ये जो डायग्राम्स मैंने ड्रॉ करी थी, आप उनको एक बार देख लो। सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द डेटा सेंड, द डेटा सेंडर वांट्स टू सेंड। इसमें नंबर ऑफ वंस हैं जी ऑड, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो जनरेटर ने क्या किया, इवन पैरिटी करने के लिए इसमें 1 को ऐड कर दिया और इसमें 1 को ऐड करके भेज दिया। रिसीवर साइड पे रिसीवर ने पैरिटी चेकर को ये डेटा पास किया। अगर तो पैरिटी हुई इवन, द डेटा विल बी एक्सेप्टेड। अगर पैरिटी हुई ऑड, द डेटा विल बी रिजेक्टेड। तो हर बार एक्चुअली मैं इवन पैरिटी के लिए ही चेक करूंगा। इवन पैरिटी के लिए क्यों चेक करूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो मैं एक ऐड करके उनको इवन कर दूंगा, और अगर नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी इवन है तो उसमें मैं 0 ऐड करके उसको इवन ही छोड़ दूंगा। तो हर बार जब चेकर चेक करेगा, इट विल चेक फॉर द इवन पैरिटी ओनली। अगर पैरिटी हुई इवन, द डेटा विल बी एक्सेप्टेड। इफ द पैरिटी विल बी फाउंड ऑड, द डेटा विल बी रिजेक्टेड। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि सिंगल बिट एरर के लिए एफिशिएंट है। अगर बस्ट एरर हो जाती है, तो अगर बस्ट एरर तो ऑड नंबर पे होती है तो वेरी फाइन, लेकिन अगर इवन नंबर पे होती है तो इट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे डेटा था, उसमें 1 को ऐड किया, अब ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन आप देख सकते हो ये बिट चेंज हो गई एंड दिस बिट इज ऑल्सो चेंज्ड। दो बिट्स चेंज हो गई थी, उसने चेक किया, पैरिटी इवन निकली और उसने डेटा को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्चुअल में डेटा ठीक नहीं था। तो हम फिर आए टू डायमेंशनल पैरिटी चेक पे, जिसमें हमने डेटा को डिवाइड कर लिया इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और रोज के लिए अलग से पैरिटी कैलकुलेट करी और कॉलम के लिए अलग। तो इसका फायदा क्या होगा, अगर एक बिट चेंज हुई, सपोज करो अब ये बिट चेंज हुई, तो ये दो पैरिटीज को इफेक्ट करेगी, रो पैरिटी को भी इफेक्ट करेगी और कॉलम की पैरिटी को भी इफेक्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल रो के लिए हुआ तो सपोज कीजिए हो सकता है कि आपको डिटेक्ट ना हो, लेकिन कॉलम के लिए वो डिटेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द टू डायमेंशनल पैरिटी। तो आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द डिफरेंस एरर डिटेक्शन मेथड्स। उसमें VRC, LRC, CRC एंड चेकसम होते हैं। VRC इज ऑल्सो नोन एज पैरिटी चेक। BRC में हम क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट बिट को ऐड करते हैं। वो कैसे ऐड करते हैं, सबसे पहले डेटा में नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करते हैं। अगर डेटा में नंबर ऑफ वंस इवन हुए तो हम 0 ऐड करेंगे। अगर नंबर ऑफ वंस डेटा में हुए ऑड तो हम क्या ऐड करेंगे, 1। तो इट मींस हर बार हम नंबर ऑफ वंस को इवन करके ट्रांसमिट करेंगे। रिसीवर साइड पे रिसीवर पास करेगा डेटा को पैरिटी चेकर में, क्योंकि हर बार पैरिटी इवन ही होगी रिसीव्ड डेटा की, अगर उसमें एरर ना हुई। तो इफ द पैरिटी विल बी फाउंड इवन, डेटा विल बी एक्सेप्टेड, बट इफ द पैरिटी विल बी आउट, द डेटा विल बी रिजेक्टेड। तो उसके बाद हमने देखा कि बस्ट एरर में ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है एल्गोरिदम। बस्ट एरर तभी डिटेक्ट कर सकता है अगर नंबर ऑफ चेंज्ड बिट ऑड हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ चेंज्ड बिट इवन हो गई तो इट विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द बस्ट एरर्स। So that concludes today's session. I hope आपको क्लियर हुई ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो नो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन।